हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बेगुड ओईटी के हिंदी वाले चैनल पे। एंड आज हम करने वाले हैं होम विजिट पे एक रोल प्ले जो करेंगी और कोई नहीं, अनपिन और जोएल सर। तो आप जाके वो वीडियो देखें एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। So Anpin, here's your role play card. Thank you. Sure. So you have 3 minutes to prepare. All the best. Alright Anpin, your time is up. You may begin now. Good afternoon. Good afternoon. Is this Miss Linda's home? Yes, it is. Am I talking to Miss Linda? Yes, you are. Okay, so Miss Linda, I'm Anpin John and I'm the district nurse working in this locality and I'm here as a part of my home visit. Alright. Is this the right time to talk? Yes, it sure is. Okay, then can we take this conversation inside? Sure thing. Please come on in. Alright. So Miss Linda, if I'm not wrong, you recently had a baby, right? Yes, that is correct, nurse. And is this your first child? Yes, it is. And to be honest, I'm feeling quite anxious about it. Yeah, congratulations on becoming a mother, Miss Linda. Thank you very much. And your baby is less than 28 days old. Am I correct? Yes, it is. I know being a first-time mother, you might be struggling a bit, but that's exactly why I'm here. I'll be explaining about different aspects of newborn care to you. So the first thing I wanted to discuss was about immunization. Immunization is extremely important for a newborn baby, It will protect your baby against several communicable and non-communicable diseases like tuberculosis, polio, and so on. And it will boost your baby's immunity. It will protect your baby for their whole lifetime. Yeah, sure thing, nurse. I was wondering about the same. Like how soon do you think I'll have to update my child's immunization schedule? I know it must be a bit confusing, Miss Linda. That's why I'll be providing you with an immunization card. It contains information about different vaccines and when to give them to your baby. Alright. So make sure that you schedule your baby's vaccinations according to that. Here you go. Thank you very much. So nurse, there is a concern which I wanted to raise with you. I'm kind of worried whether I'm able to feed my child properly enough, and I was thinking about switching to something alternative like formulaic milk. What do you think about it? I'm sorry, Miss Linda, but try to breastfeed your baby at least until the first 6 months. Because breast milk contains a lot of great nutrients and minerals that are essential for your baby's growth. It also increases your baby's immunity. And in order to increase the milk production, I suggest that you consult a doctor or a gynecologist. They can suggest some diets that you can follow to increase milk production. So how does that sound? Yeah, that sounds great. Okay. And if you want, I can provide you with a leaflet which contains information about different diets that you can follow. Here you go. Thank you. Along with that, there are other things that you need to be aware of. Regarding breastfeeding itself, when you're breastfeeding your baby, try to sit upright and keep your baby in a sideline position, but hold your baby's head upright. This will help to avoid aspiration, which is the traveling of food particles to the lungs. We don't want that to happen to our baby. Also, make sure that you clean your breasts before and after feeding your baby, or otherwise it might lead to the risk of infection. And breastfeed your baby every 2 hours. It will help to nourish your baby. And after breastfeeding your baby, try to burp the baby. This will also help to avoid aspiration. There are some safety measures also that you need to follow. Never leave your baby unattended. Always keep an eye on your baby. And if you are putting your baby down to sleep, try to put pillows on all the sides to avoid falling. And make sure that you baby-proof the house in order to avoid any injuries. The last thing that I wanted to discuss with you is regarding the hygienic measures that you and your family members need to follow. For example, before holding the baby, try to wash your hands. And try to avoid contact with the baby if you notice you have any signs or symptoms of any diseases. This will help to avoid transmitting these infections to your baby. And after every visit, try to bathe your baby properly in lukewarm water. And wash your baby's clothes in hot water to kill off bacteria. Use disinfectants and detergents that are friendly to your baby's skin. I hope you'll be able to follow all of these measures, right? Yes, I hope so too. Is there anything else bothering you? No, nothing else. I think you have addressed all the concerns that I had earlier. Lastly, if it's okay with you, I would like to come back for a visit after 3 months to check up on you and your baby. Is that okay? Yes, that would be great.
So if you have any queries in between, you can always contact us at the district hospital and we'll help you. Thank you for listening patiently and have a nice day. Thank you very much. I wish you and your baby good health. Thank you, Naz. सो वेलकम बैक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपने देखा होगा उस रोल प्ले को किस किस्म से प्रेजेंट किया गया था, कैसे अनपिन और ज्वेल सर ने उस केस को हैंडल किया। एंड अब मैं अरविंद आपको बताने वाला हूँ कि उस केस में एग्जैक्टली हो क्या रहा था एंड उसको हम लोग किस किस्म से कर सकते थे और हम लोगों ने जो भी उसमें बोला वो हम लोगों ने क्यों किया। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन। अब बाकी जो केसेस हम लोग यूजुअली करते हैं जो कि नोन या अननोन होते हैं, उसमें हम लोग किस किस्म से इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। या तो हम लोग पेशेंट के बेड साइड में होते हैं और हम लोग पेशेंट से मिलने जाते हैं, और नहीं तो हम लोग क्लिनिक या कहीं पर होते हैं एंड देन पेशेंट और नहीं तो बाईस्टैंडर हमसे मिलने के लिए आते हैं, राइट। बट इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या है कि एक पेशेंट जिसका नाम लिंडा था एंड शी रिसेंटली गिव बर्थ टू अ बेबी जो अभी 20 डेज़ का हो चुका है। तो एज अ नर्स आप उनके घर पे गए हो उनसे मिलने के लिए एंड जानने के लिए कि वो कैसे कर रही है, बच्चा कैसे है, एंड ऑल्सो टू लेट द मदर नो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बेबी, कैसे बच्चे का ध्यान रखा जाए। सो होम विजिट केसेस के इंट्रोडक्शन में यूजुअली 6 पार्ट्स होते हैं: ग्रीटिंग्स, कन्फर्मेशन, सेल्फ इंट्रो, पर्पस ऑफ विजिट, अवेलेबिलिटी एंड उसके बाद परमिशन। अब ये सब क्या है हम आगे देखते हैं। सो अब हम देखते हैं ग्रीटिंग्स पे। क्या ग्रीटिंग्स? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यही सब बातें। एंड अगर क्वेश्चन में दी गई हो कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है दिन का, लाइक कुछ क्वेश्चंस में दी होती है कि नाउ इट्स मॉर्निंग और नहीं तो इट्स मॉर्निंग एंड द डॉक्टर इज ऑन राउंड, उससे हमको पता चल जाता है कि अभी दिन का टाइम है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कुछ टाइम नहीं दिया था। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ योर एग्जाम, कब आपका एग्जाम चल रहा है, आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इस पर्टिकुलर केस में अभी लेट्स गो विद गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग। कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन क्या है, क्या कन्फर्म करें? आप देखिए, अब बाकी केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट के बेड साइड में जाते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं तो हमको पता होता है कि वही पेशेंट है। बट इस पर्टिकुलर केस में हम एक घर जा रहे हैं, किसी और के घर जा रहे हैं, तो देयर इज़ हाई चांस कि हम किसी गलत घर पे चले जाए या किसी और से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मुझसे मिलने के लिए एक नर्स आई थी, ठीक है, वो मेरे घर पे आई, दरवाज़ा लेकर मेरे मम्मी ने खोला। अब मम्मी से बात करने से फ़ायदा होगा नहीं, उनको मुझसे बात करना होगा, राइट। सो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए हम कंफर्म करते हैं। कैसे कंफर्म करें? 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ दिस लिंडास होम या इज़ दिस लिंडास रेसिडेंस? क्या ये लिंडा का घर है? मेरे केस में क्या ये अरविंद का घर है? उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये अरविंद का घर है या लिंडा का घर है, कि मैं किसी और के घर पे आ गई हूँ। एंड वंस दैट थिंग इज़ कन्फर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मच सिंपलर। एम आई टॉकिंग टू लिंडा? आर यू मिस लिंडा और आर यू अरविंद? क्या मैं करेक्ट इंसान से बात कर रही हूँ, ये बात आपको जानना होगा, राइट। तो नाम पूछ के कंफर्म कर लीजिए क्या मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ कि आप कोई और हो। एंड एक बार वो पता चल जाए, आप इंट्रोडक्शन के बाकी पार्ट्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। एंड अब आते हैं हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट में। अब बाकी केसेस में अगेन जब आप बेड साइड में जाते हो, आप बोल सकते हो कि आई एम वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेस वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, क्योंकि अभी आप हॉस्पिटल के अंदर हो। तो इस केस में कौन हो आप? यू सी होम विजिट केसेस में यूजुअली 3 काइंड के नर्स होते हैं, 3 किस्म के नर्सेस मिलते हैं। पहला होता है रजिस्टर्ड नर्स, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड देन डिस्ट्रिक्ट नर्स। इनमें से कोई एक नर्स होता है जो जाके पेशेंट से बात करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आप डिस्ट्रिक्ट नर्स हो एज गिवन इन द क्वेश्चन, सो आप खुद को एज अ डिस्ट्रिक्ट नर्स इंट्रोड्यूस करोगे। माई नेम इज़ सो एंड सो, आई एम द डिस्ट्रिक्ट नर्स। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या था? पर्पस ऑफ द विजिट। सो पर्पस ऑफ द विजिट, अब आप देखिए पर्पस ऑफ द विजिट प्रेजेंट करने का 2 तरीका इस केस में। या तो आप अभी जिस फ्लो में आ रहे हो उसी फ्लो में आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, और एल्स जैसे कि रोल प्ले में आपने देखा, आप घर के अंदर जाने के बाद बोल सकते हो उनको कि पर्पस ऑफ द विजिट क्या था। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपके दिमाग में द पर्पस ऑफ द विजिट आ गया या आपके फ्लो में है, देन जस्ट गो फॉर इट। लेकिन बाई चांस आप भूल गए पर्पस ऑफ द विजिट बोलना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाद में जब आप घर के अंदर चले जाते हो, आप बोल सकते हो कि मैं इस कारण के लिए आई हूँ या आई थी या आया हूँ। इट्स अप टू यू, ओके। सो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो बोलने के बाद कि आप डिस्ट्रिक्ट नर्स हो एंड आई एम हियर टू, जो भी रीज़न है इस पर्टिकुलर केस में आप आए हो उनको बताने के लिए कि क्या मैं ये देखने के लिए आई थी कि आप कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू, एंड देन आपका बच्चा कैसे है, एंड आपको थोड़ा बहुत चाइल्ड न्यूबॉर्न केयर के बारे में बता दो, ये सोच के मैं आई थी, राइट। सो आप यही बात बोल सकते हो। Today I am here to check on you and your baby and also to give you some
टिप्स ऑन न्यूबॉर्न केयर। सो दैट्स अप टू यू। आप अभी भी बोल सकते हो और घर के अंदर जाके भी ये बात बोल सकते हो। नेक्स्ट अप, अवेलेबिलिटी। क्या अवेलेबिलिटी? आप किसी के घर गए हो तो उनको पूछना पड़ेगा ना आपको कि क्या आप फ्री हो, क्या अभी हम बात कर सकते हैं। थोड़ा आप सीधा जाके बात करना स्टार्ट कर दोगे। सो कंफर्म कीजिए कि वेदर द पर्सन इज़ अवेलेबल और नॉट। सो मिस लिंडा, आर यू फ्री राइट नाउ? आर यू फ्री टू हैव अ चैट? आर यू अवेलेबल राइट नाउ? वही अवेलेबिलिटी का मतलब है। एंड वंस शी सेज़ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, जो इंटरलोकेटर कर ही देगा क्योंकि टास्क में तो आगे जाना है। एंड देन एक बार आपको पता चल जाए कि वेदर शी इज़ अवेलेबल और नॉट, आप परमिशन लेके घर के अंदर जा सकते हो। अगेन परमिशन लेके घर के अंदर जा सकते हो। किसी और का घर है, नाउ यू कांट जस्ट बार्ज इनटू हर हाउस, राइट? तो आपका बच्चा राइट में मिलने नहीं, डोंट डू दैट। रेदर देन दैट आस्क हर इफ़ इट्स ओके टू गो इनसाइड एंड टॉक। तो क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? यही बात आपको इंग्लिश में बोलनी है। सो मिस लिंडा, कैन वी सिट इनसाइड एंड टॉक? और नहीं तो कैन वी टेक दिस कन्वर्सेशन इनसाइड? शैल वी टेक दिस कन्वर्सेशन इनसाइड? मे आई कम इन? ऐसे आप परमिशन लेके घर के अंदर जा सकते हो। एंड वंस यू आर इनसाइड, आपका एक्चुअल रोल प्ले स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट तक इंट्रोडक्शन ही चल रही थी। यही है नॉर्मल रोल प्लेज एंड एक होम विजिट रोल प्लेज का मेजर डिफरेंस। द इंट्रोडक्शन इन होम विजिट इज समवॉट लेंथी। तो हम देखते हैं बाकी रोल प्ले में। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं मेन टास्क के बारे में। अगर आप ध्यान से देखोगे रोल प्ले को तो पता चलेगा कि मेन टास्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्यूनाइजेशन के बारे में, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स एंड उससे रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में, एंड देन थर्ड में हाइजीन जिसको फॉलो करना होता है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन से। तो फर्स्ट टास्क में, नाउ दैट यू आर इनसाइड, आप सीधा पूछ सकते हो कि आप लाइक मम्मी कैसी है, बच्चा कैसा है, ये सब आप कंफर्म कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप जा सकते हो इम्यूनाइजेशन की ओर, जिसमें आपको बताना है कि इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आप उनको एक लीफलेट, पैम्पलेट या किसी भी सॉर्ट ऑफ पेपर या कुछ भी आप दे सकते हो जिससे कि मदर को पता चले इम्यूनाइजेशन का इम्पॉर्टेंस। अगेन मुझे एक बात आपको यहाँ पर बताना है, आप यूजुअली जब भी लाइक मैं बहुत देखा होगी, बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, दे यूजुअली से कि आप ये लीजिए मैं आपको एक इम्यूनाइजेशन के लिए कार्ड दे दूंगा और नहीं तो मैं आपको एक लीफलेट दे दूंगा। एंड वो दे दूंगा पे ही रह जाता है। कभी वो इम्यूनाइजेशन का कार्ड हो या लीफलेट जो भी हो, कभी पेशेंट को मिलता ही नहीं है। सो उसके लिए मैं आपको 2 रास्ता बताता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपको बाद में दूंगा, लाइक आई विल प्रोवाइड यू विद अ लीफलेट, अगर आप ऐसा बोलते हो तो बाद में आप उनको दे दीजिए। कैसे दोगे? एंड हियर इज़ द लीफलेट दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, ऐसा बोल के आप उनको लीफलेट दे सकते हो। और नहीं तो आप बाद में के लिए काम रखो ही मत, अभी सब खत्म कर दो, आप सीधा लीफलेट दे के बात करो। हियर हैव दिस लीफलेट, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेड्यूल्स एंड सॉर्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन योर चाइल्ड रिक्वायर्स एट सो एंड सो गिवन टाइम या सो एंड सो गिवन डेट। सीधा दे दो इम्यूनाइजेशन वाला कार्ड और नहीं तो लीफलेट। एक बार आप लीफलेट दे देते हो तो उसके बारे में याद रखने का झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? तो ये बात आप याद रखिए। एंड एक और बात, जब भी आप इम्यूनाइजेशन के लिए हो या किसी भी रीज़न के लिए आप जब भी कोई लीफलेट देते हो पेशेंट को, उनको उसके कंटेंट के बारे में भी बता दीजिए। हियर हैव दिस लीफलेट, दिस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सो एंड सो थिंग्स। इस केस में इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्यूनाइजेशन रिक्वायर्ड बाय योर चाइल्ड और नहीं तो द इम्यूनाइजेशन दैट यू हैव टू गिव टू योर चाइल्ड। एंड कुछ और केस हो तो here have this leaflet, it contains information about various nursing services our agency is providing. On it contains information about numerous breast cancer support groups. See, आप बता दीजिए कि इस कार्ड में, इस लीफलेट में क्या है जब भी आप उसको हैंड ओवर करते हो। आई होप कि मैंने ये बात ठीक से आपको बता दी है। नेक्स्ट अप, ब्रेस्ट फीडिंग हैबिट एंड सेफ्टी रिलेटेड टास्क जो था अपने पास, विच इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टास्क 3, राइट? सो उस टास्क में हम पेरेंट को बता रहे हैं, दैट इज लिंडा को हम बता रहे हैं कि आपको आपके बच्चे को किस किस्म से ब्रेस्ट फीड करना है, कैसे दूध देना है, कैसे लेटाना है, इन सब बारे में आप बता रहे होते हो। इस केस में यू गाइस आर नर्सेस, राइट? सो आपको जो भी मालूम है आप वो सारी बात इसमें बता सकते हो। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम कितने बार दूध पिलाना होता है, कब कब दूध पिलाना होता है, कैसे दूध पिलाना होता है, दूध पिलाने से पहले क्या की जानी चाहिए, दूध पिलाने के बाद क्या क्या किया जाना चाहिए, राइट? एंड ऑल्सो इस केस में आपने ध्यान दिया होगा कि मदर ने कंसर्न भी पूछा था कि नर्स मेरा ज़्यादा दूध नहीं है तो क्या मैं इसको फॉर्मुलेटेड मिल्क दूँ? तो उस केस में अब यू सी आप उनको डॉक्टर को रेफ़र कर सकते हो। आप सीधा बोल सकते हो कि इट्स गुड अगर आप जाके डॉक्टर से बात करो, क्योंकि डॉक्टर आपको उस हिसाब से मेडिकेशन या कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिकेशन जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सके। और नहीं तो मे बी डॉक्टर ये बोल दे कि येस, तो आप जाके इनको बच्चे को फॉर्मुलेटेड मिल्क पिलाइए। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग,
इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव द बेबी ब्रेस्ट मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बात आप अगर बता सको तो बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे आप बोल सकते हो ये सारी बातें, राइट। सो मिस लिंडा, नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द बेस्ट वे to breastfeed your baby or some safety measure that you have to keep in mind while breastfeeding your baby. First off, clean your breast before and after breastfeeding, and also make sure that you don't use any perfumed products or perfumed toiletries. क्यों? आपको रीज़न भी बताना होता है, एंड इस केस में अगर आप श्योर नहीं हो रीज़न के बारे में, so just skip it because that might be or that will be bad for your baby's health as your baby is still small. राइट एंड उसके बाद नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, अदर देन दैट मेक श्योर दैट यू ब्रेस्ट फीड योर बेबी इन अ साइड लाइंग पोजिशन, एंड वाइल यू ब्रेस्ट फीड योर बेबी मेक श्योर दैट द हेड इज केप्ट इन एन अपराइट पोजिशन। इट विल हेल्प टू अवॉइड एस्पिरेशन। एंड जब आप बताते हो एस्पिरेशन, यू सी इट्स अ मेडिकल टर्म, राइट। सो व्हेनेवर यू यूज अ मेडिकल टर्म, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट दैट इज़। बताने का ट्राई कीजिए कि वो मेडिकल टर्म क्या है। इस केस में एस्पिरेशन क्या है, जब जो भी आप खाते हो वो आके लंग्स और नहीं तो अपने विंड पाइप में चली जाती है, उसको हम लोग एक्सप्रेशन मानते हैं, राइट। सो टेल दैट टू द पेशेंट, टेल दैट टू द मदर इन दिस केस। सो ट्राई टू अवॉइड एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मीन्स, सो एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन मीन्स ट्रैवलिंग ऑफ फूड और फूड गेटिंग इनटू द लंग्स और नहीं तो अपने ब्रीदिंग सिस्टम में। सो ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू द मदर, एंड आफ्टर दैट यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स दैट शी हैव टू कीप इन माइंड, लाइक ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड आफ्टर और इन every 2 hours। बच्चे को हर 2 घंटे में दूध देना पड़ता है, राइट। एंड देन देयर इज वन लास्ट थिंग, एंड दैट इज burping द बेबी। वाई? इट विल ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड एस्पिरेशन एंड विल ऑल्सो हेल्प टू गेट ऑल द गैस आउट ऑफ द बेबी स्टमक। एंड विद दैट हम लोग का टास्क 3 कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने सारी बातें रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स एंड क्यों ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इतना आपको ध्यान रखने या जानना पड़ता है, ये सब हम लोगों ने बता दिए पेरेंट को, राइट। अब उसके बाद है फाइनल टास्क। आई मीन नॉट फाइनल टास्क बट फ्रॉम द टास्क पॉइंट ऑफ व्यू ये अपना फाइनल टास्क है, उसके बाद वाला रीअश्योरेंस है। सब चलते हैं फाइनल टास्क की ओर। तो अब हम आ गए हैं फाइनल टास्क और नहीं तो सेकंड लास्ट टास्क में, एंड इस टास्क में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइजीनिक मेजर्स के बारे में। क्या हाइजीनिक मेजर्स? हाइजीनिक मेजर्स जो बच्चे को देखना है, मतलब बच्चे को ध्यान रखना होगा, एंड देन जो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ध्यान रखना होगा। अब क्या क्या हाइजीनिक मेजर्स हो सकता है? गर्म पानी से नहलाना, नाखून काटना, बच्चे को छूने से पहले हाथ ठीक से धोना, अगर कफ या कुछ हो तो बच्चे के पास ना जाना, मेक श्योर कि टेबल्स के जो कॉर्नर्स एंड ऑल होते हैं उसको किसी राउंड चीज़ से कवर करके रखे, स्टेयर्स के कॉर्नर्स को किसी अगेन राउंड चीज़ से कवर करें। एक सेकंड, तो इन सब को हम लोग क्या बोले? जो टेबल्स और स्टेयर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसको आप बोल सकते हो बेबी प्रूफिंग। सो बेबी प्रूफिंग द हाउस, वन एग्जाम्पल ऑफ हाइजीन एंड सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट the family members wash their hands before they handle or touch the baby. If they have cough or any fever or anything, any sort of illness, make sure that they don't go near the baby. उसके अलावा बेबी का हम लोग कैसे ध्यान रखें? And try to bathe your baby in lukewarm water and use only those soaps and shampoos which are good for the baby or which are healthy or safe for the baby. उसके अलावा आप फिर क्या बात कर सकते हो? और कौन सा सेफ्टी मेजर है? सोचिए खुद, आपको भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि बेबी का जो भी टॉयज़ है, मेक श्योर दैट द टॉयज़ दैट द बेबी इज़ हैविंग इज़ एप्रोप्रिएट फॉर द एज। अगर आप टॉयज़ के सेक्शन में जाके टॉयज़ एंड ऑल को देखते हो तो पीछे एज लिखा होता है। टॉयज़ 3 साल के बच्चों के लिए, 4 महीने के बच्चों के लिए, राइट। So make sure that the toys are appropriate for the baby's age, and also check whether they are safe for the child or not. इससे हम लोगों ने एक और टास्क कंप्लीट कर ली है, एंड अब हम आ गए हैं फाइनल टास्क में। बट इससे पहले मैं फाइनल टास्क स्टार्ट करूँ, मुझे बस आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना है। यू सी, हर टास्क के बीच आप कंसर्न पूछने की जगह क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि क्या आपको बात समझ में आ रहा है, आई एबल टू फॉलो मी, एम आई मेक मैसेज क्लियर। सो ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन, दिस विल ऑल्सो कीप द इंटरलोकेटर और द पेशेंट इंटरैक्टिव, ओके। इट विल कीप देम इंटरैक्टेड एंड यू वांट देम टू बी इंटरैक्टिव, अदरवाइज वो लोग सो जाएंगे, राइट। सो टू अवॉइड इट, बीच बीच में पूछेगा इन टास्क के बीच कि जो मैं आपको बोला अभी तक क्या वो आपको समझ में आई है या नहीं। मेक श्योर टू आस्क दिस क्वेश्चंस। एंड देन फाइनल टास्क में अब क्या बात चल रहा है, कंफर्म करो कि मम्मी अभी कॉन्फिडेंट है खुद के बच्चे के बारे में, खुद के बच्चे को देखने के लिए या खुद के बच्चे का ख्याल रखने के लिए। एंड देन
आस्क हर परमिशन टू कम बैक अगेन, क्योंकि आपको वापस इनको विजिट करना है आफ्टर 3 months, राइट? सो परमिशन पूछिए. How will you ask the permission? So Miss Linda, that's it for today. Would you mind if I come again after 3 months? Or do you permit me to come again and visit you after 3 months? And reason भी आप बोल दीजिएगा क्यों? So that I can take a look at your baby or to know how you and your babies are doing, right? So आप पूछ लीजिए, एक बार confirm कर लीजिए. And that's it. That's the end of the task. इसके बाद यूजुअल कंक्लूजन. बट हाँ, इस कंक्लूजन में आप बजर दबाने नहीं बोल सकते, क्योंकि घर पे बजर दबाऊंगा तो देयर इज़ नो वे हॉस्पिटल में बेल बजेगी. तो अब क्या कर सकते हो? सो आई होप दैट आई हैव क्लियर ऑल योर कंसर्न्स, बट इफ़ यू डू हैव एनी अदर डाउट्स या कंसर्न, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी और नहीं तो कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल. डिपेंडिंग ऑन नर्स कहाँ से आई है, उस जगह को आप कॉन्टैक्ट करने बोल सकते हो, एंड उससे दे विल बी एबल टू सिंपली कॉन्टैक्ट यू. एंड देन कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी उनका डाउट हो, आप ऑनलाइन लाइक थ्रू फोन आप क्लियर कर सकते हो, और नहीं तो यू कैन कम बैक एंड मीट देम अगेन, राइट? सो दैट्स इट फॉर द कंक्लूजन एंड दैट्स द एंड ऑफ द टास्क. आई होप कि आपको ठीक से समझ में आई कि मैंने क्या बोला, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो गो बैक, वॉच द वीडियो अगेन. अगर स्टिल आपको समझ में नहीं आई तो वापस देखिए तीसरे बार, जितने बार देखने देखिए, शेयर कीजिए, इट्स अप टू यू. ओके, सो that's it. And if you have any concern, please don't hesitate to use the comment section below. And also उसके बगल में आपको एक रेड बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कीजिए. And this is Arvind signing off and see ya.